Today I want to, as said, I want to talk about knowing the Father, the Son and the Holy Spirit. मैं आज बात करने वाला हूँ पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जानने के बारे में। So we all can say that I know about God, I know about the Father, Son and the Holy Spirit. हम सभी ये कह पाते होंगे कि हाँ, हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के बारे में जानते हैं। Today, as Stuti said her memory verse, आज जब स्तुति में अपना जो वचन है वो बोल रही थी, John 17:3. यूहन्ना 17 उसका तीसरा वचन। Can we open the word of the Bible to that verse? हम वचन को John खोलेंगे। 17:3. यूहन्ना 17वां अध्याय उसका तीसरा वचन। And this is eternal life, that they may know thee, the only true God, and Jesus Christ whom thou hast sent. और अनंत जीवन ये है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। So, being a Christian, being a born again Christian, is so that we will have eternal life. और एक नया जन्म पाया हुआ मसीही होना जो है ताकि हम नया अनंत जीवन को पा सकें। And this eternal life is nothing but knowing the Father, Son and the Holy Spirit. और ये अनंत जीवन इसलिए है ताकि हम पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा को जानें। This eternal life is not a life which is, what do you say? We say which is a long life. That is true. और ये अनंत जीवन जो है, जैसे कि आप बोलेंगे कि ये लंबा जीवन है, वो सही है। But it is a quality of life. परंतु ये जीवन की गुणवत्ता है। It's knowing God. ये परमेश्वर को जानना है। Okay, so that eternal life starts for us from here, from on earth onwards. और वो अनंत जीवन हमारा जो है इस पृथ्वी पर भी शुरू हो जाता है। Okay, a life which will never end for us. जो जीवन हमारे लिए जिसका अंत नहीं होगा। But brothers and sisters, the important thing is that about religion and having eternal life. परंतु भाइयों बहनों, महत्वपूर्ण बात ये है कि धर्म और अनंत जीवन पाना जो है। See, religion has got nothing to do with knowing God. देखिए, धर्म जो है परमेश्वर को जानने के लिए उसमें उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। It is only a set of activities. वो सिर्फ कुछ कार्य है। We have said this before also. ये हमने इससे पहले भी बोला है। The religion is, you can pray, you can come to the church, you can read the Bible, all that alone without knowing God is religion. एक धर्म जो है, आप प्रार्थना कर सकते हैं, बाइबल पढ़ सकते हैं, सभा में आ सकते हैं, आराधना कर सकते हैं, वो सब कुछ एक धर्म है। वहाँ पे परमेश्वर को जानना नहीं होता है। But by the grace of God, we have all come to know, if all of us who have come to know Christ have got eternal life. परंतु परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हम सभी जो परमेश्वर को जान पाते हैं वो अनंत जीवन है। That means we have come to know the living God. इसका मतलब ये है कि हम जीवित परमेश्वर को जाने हैं। But brothers and sisters, that is the starting point. तो भाइयों बहनों, ये सिर्फ एक शुरुआत है। It is just like we meet a person. ये ऐसा ही है जैसे कि हम एक व्यक्ति से मिलते हैं। And say, or many of you have not seen Brother Ramlal. ऐसे कह सकते हैं कि आप में से बहुत सारे लोगों ने भाई रामलाल को नहीं देखा है। Okay, many of you are seeing him for the first time. आप में से कई लोग उन्हें पहली बार देख रहे हैं। So you know something about him. तो आप उनके बारे में कुछ जानते हैं। But some of us have known him more. आप में से कुछ हम जो हैं उन्हें ज़्यादा जानते हैं। We have been to his house. हम उनके घर भी गए हैं। And we know a little bit more about him. और उनके बारे में और थोड़ा ज़्यादा हमें पता है। So this eternal life of knowing God, knowing the Father, knowing the true God is something like that. एक परमेश्वर पिता को जानने का जो अनंत जीवन है वो इसी तरह है। That is our experience only that first experience of just knowing God? क्या हमारा अनुभव सिर्फ इतना ही है कि हम पहली बार परमेश्वर को जान रहे हैं, उतना ही? And then our knowledge or our communion with God is not much. फिर बाद में परमेश्वर का हमारे साथ जानकारी है, उनके साथ जो संगति है उसके बाद ज़्यादा नहीं होता है हमारे अंदर। Then what happens is that we don't know God much. फिर क्या होता है कि हम परमेश्वर को ज़्यादा नहीं जान पाते हैं।
we have heard from other people about God. हमने दूसरे लोगों से परमेश्वर के बारे में सुना होता है। So though we have met Jesus, we hardly know much about him. भले ही हम यीशु से मिले हैं, फिर भी हम उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानते। Can this be the condition of believers? क्या ये विश्वासियों का अवस्था हो सकता है? Can it be? क्या ये हो सकता है ऐसे? I think it's possible, because it's only when we are intimate or in close association with a person, we will know people more. मुझे लगता है कि ये संभव है, क्योंकि एक व्यक्ति के साथ हमारा जो गहराई का जो रिश्ता है, उनको ज़्यादा जानने के बारे में तभी हम उन्हें जान पाते हैं। So that's why Jesus said, eternal life is that they may know thee. इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि अनंत जीवन वो है कि वो परमेश्वर को जाने, Not about him. उनके बारे में नहीं। When we come to the meeting here, we hear about Jesus. हम जब यहाँ पे सभा में आते हैं, हम प्रभु यीशु के बारे में सुनते हैं। All of us hear so many good things about Jesus here. हम में से हर एक लोग जो है यीशु के बारे में बहुत सारी बातें, अच्छी बातें सुनते हैं यहाँ। We hear about the new covenant doctrine and so many other things. हम यहाँ पे नई वाचा का सिद्धांत और बहुत सारी और चीज़ों के बारे में सुनते हैं। But do we know God? पर क्या हम सच में परमेश्वर को जानते हैं? This is a question to each one of us. तो ये सवाल हम हर एक से है। In the sense that, do we know him more and more? ये इस तरीके से है कि क्या हम उन्हें और ज़्यादा जानते हैं? That only we know. वो सिर्फ हम ही जानते हैं। Okay? So in Jeremiah 9:24 it says, यिर्मयाह की किताब 9वां अध्याय उसके 24 वचन में कहा गया है। see, it says earlier verse, it says you can boast about so many things, about so many great things that we have. तो उसके पहले वचन में कहा गया है कि आप बहुत सारी चीज़ें आपके पास जो है उसके बारे में घमंड कर सकते हैं, बड़ाई कर सकते हैं। We can boast about our knowledge, about our wisdom and about so many other things. हमारी बुद्धि, हमारे ज्ञान, ऐसे बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बड़ाई कर सकते हैं। But Jeremiah 9:24 says, परंतु यिर्मयाह 9 उसके 24वें वचन में कहा गया है, but let him who boasts, if you want to boast of this, that he understands and knows me. परंतु जो घमंड करे वह इसी बात पर घमंड करे कि वह मुझे जानता और समझता है। That knows me in what? That I, the Lord, exercise loving kindness, justice and righteousness on earth. For I delight in these things, declares the Lord. कि मैं ही वह यहोवा हूँ जो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है, क्योंकि मैं इन्हीं बातों से प्रसन्न रहता हूँ। So when we know God, we know His qualities. तो जब हम परमेश्वर को जानेंगे तब हम उनकी गुणवत्ता को भी जानेंगे। He says He exercises loving kindness, justice and righteousness. यानी कि वो पृथ्वी पर करुणा, न्याय और धर्म के काम करता है। So many people do not know about God. बहुत सारे लोग परमेश्वर के बारे में जानते नहीं हैं, And so they are confused. इसलिए वो गड़बड़ी में रहते So हैं। when they come to us, we can tell them that our God is full of loving kindness and justice and righteousness. जब लोग हमारे पास आते हैं तो हम उनको कह सकते हैं हमारे परमेश्वर जो है करुणा, न्याय और धर्म से भरा हुआ है। That is only if we know Him. ये तभी होगा जब आप उनको जानेंगे। Only if we know Him as we have associated or interacted with Him, then only we know this. जब हम उनके साथ ज़्यादा गहराई का रिश्ता रखेंगे तब भी तो हम उन्हें जानेंगे। So, and there's a word in 1 John 2:3 says, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसके 3 वचन में कहा गया है, suppose we say I know God. मान लीजिए कि हम ये कहते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता So we हूँ। are talking about knowing God, and we say, and we have a response that yes, I know God. क्योंकि हम परमेश्वर को जानने के विषय में बात कर रहे हैं तो हम प्रत्युत्तर दे सकते हैं कि हाँ मैं परमेश्वर को जानता हूँ। Then there is one test. फिर वहाँ पे एक परख होता है, And by this we know that we have come to know Him. और इसके द्वारा हम जान सकते हैं कि हम उन्हें जान गए हैं If we keep His commandments. यदि उसकी आज्ञाओं का पालन हम करेंगे। Okay? That is a test. ये परख है। Suppose I say, yeah, I know God. हम कहेंगे कि ना हम परमेश्वर को जानता हूँ मैं, I know God. But then I also know that I don't keep some of His commandments. और फिर मैं ये भी जानता हूँ कि परमेश्वर की कुछ आज्ञाओं का पालन मैं नहीं करता हूँ। Some things which in my conscience I know that I don't keep some of His commandments. मेरे विवेक में कुछ वैसी बातें हैं जहाँ पे मैं जानता हूँ कि कुछ आज्ञाओं का पालन परमेश्वर का मैं नहीं करता हूँ। God only looks at our awareness about His commandments. परमेश्वर जो है हमारी जो जानकारी परमेश्वर के आज्ञाओं के विषय में उसकी तरफ देखता है। And that whatever we are aware of His commandments, if we know Him, we will keep it. और जो भी आज्ञा हम जानते हैं यदि हम वो जानेंगे तो उसकी आज्ञा पालन भी करेंगे। So I'm not saying that whether we are victorious.
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम जयवंत हुए हैं क्या, I'm not saying that we are always victorious. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हम हमेशा जयवंत ही But रहते there is हैं, always a desire to keep His commandments. परंतु हमेशा एक मन में इच्छा होती है कि उसकी आज्ञा का पालन हम करें। Everybody who knows God जो कोई भी परमेश्वर को जानता doesn't हो, want to disobey His commandments. सॉरी, Doesn't want to disobey His commandments. जो वो को कभी भी परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना नहीं चाहता। I'm not saying that they are victorious. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो विजयी हुए हैं, They want to be victorious. वो विजयी होना चाहते Their हैं। desire is to be victorious and become more conformed to the image of Jesus. उनके मन की इच्छा यही है कि वो जयवंत हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के सदृश में बनते जाएं। So that is a test for us to know whether we say that I know God confidently, then are we keeping His commandments? तो ये हमारे लिए एक परख है कि जब हम आत्मविश्वास से कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानते हैं, तो क्या हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करते हैं। So brothers and sisters, in the new covenant, this is a wonderful privilege for us that we all can know God. तो भाइयों बहनों, नई वाचा में ये हमारे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम परमेश्वर को जान सकते हैं। We have seen that in Hebrews chapter 8 verse 11 it says, for all shall know me from the least to the greatest of them. हमने ये देखा है इब्रानियों के 8वें अध्याय के 11वें वचन में कि हम मुझे सब जानेंगे, छोटे से लेकर बड़े तक सभी मुझे जानेंगे। So in the new covenant we don't need anybody to teach us how to know God. और नई वाचा में हमें किसी की जरूरत नहीं है हमें सिखाने के लिए कि कैसे हम परमेश्वर को जानें। We'll read that verse 8:11. इब्रानियों 8 उसके 11वां वचन हम पढ़ेंगे। And they shall not teach everyone his fellow citizen and everyone his brothers, saying, know the Lord, for all shall know me from the least to the greatest of them. और हर एक अपने देश वाले की और देश वालों को और अपने भाई को ये शिक्षा ना देगा कि तू प्रभु को पहचान, क्योंकि छोटे से बड़े तक सब मुझे जान लेंगे। So all of us, from the least means from the children to the oldest, can know God. हम सब लोग यानी कि छोटे जो बच्चे हैं वहाँ से लेके जो बड़े हैं सभी लोग हम परमेश्वर को जानेंगे। So that is the greatest privilege that we have as new covenant Christians, because the Holy Spirit is there who helps us to know God. एक नई वाचा के विश्वासी के रूप में हमारे पास एक बहुत बड़ा सौभाग्य है कि पवित्र आत्मा के द्वारा हम परमेश्वर को जान पाते हैं। So brothers and sisters, this wanting to know God is not a very casual thing. तो परमेश्वर को जानने की चाहत रखना जो है ऐसे ही एक हल्की बात नहीं है। Every Christian should have a thirst to know God more. हर एक मसीही में एक प्यास होना चाहिए कि वो परमेश्वर को और ज़्यादा जाने। In the psalmist it says, as the deer pants or thirsts for the waters, so my heart pants after you. भजनकार कहता है कि जैसे हिरनी पानी के लिए तरसती है, तड़पती है, वैसे मेरा हृदय जो है तेरे लिए तड़पता है। See, unless we have that longing and desire to know God, we will not know Him. जब तक हमारे अंदर एक बड़ी लालसा और चाहत ना हो कि हम परमेश्वर को जानें, तब तक वो हम नहीं जान पाएंगे। Jesus is the one who sought after us. यीशु मसीह है जो हमें खोज के आए हैं। Like the shepherd who is going after the sheep. जैसे कि एक चरवाहा जो अपने भेड़ों के पीछे जाता है, And that's how we came to know Him. वैसे ही हम उन्हें जान पाए हैं। But now if the sheep wants to remain away from the shepherd, यदि ये जो भेड़ है वो भेड़ जो चरवाहा है उसे दूर रहना चाहता हो and not close to him, और उससे करीब होकर नहीं चलना चाहता हो, then the sheep will not be able to know the way the shepherd is. तो फिर ये भेड़ जो है वो चरवाहे के मार्ग को वो कैसा है वो नहीं जान पाएगा। So the apostle Paul's only desire was that he wants to know Jesus more. प्रेरित पौलुस की एक ही इच्छा थी कि वो प्रभु यीशु मसीह को ज़्यादा जानना चाहता था। We had that Bible study where we spoke about this. और हमारी जो बाइबल का अध्ययन हुआ वहाँ पे हमने इसके बारे में बात की। He said that I count everything as loss so that I might know Him. वो कहते हैं कि मैं सारी चीज़ों को हानि समझता हूँ ताकि मैं प्रभु को जान पाऊँ उसके लिए। Suppose we want to know Jesus, know God, then we should be ready to keep everything aside and keep Him first. यदि हम परमेश्वर को यीशु को जानना चाहते हैं तो हमारे अंदर ऐसी एक बात होनी चाहिए कि हम सारी बातों को बाजू में रख के हम परमेश्वर को सिर्फ जानने में ही अपना दिल लगाएं। So then only we will be able to know Him. तभी हम परमेश्वर को जान पाएंगे। Philippians 3:10 says, फिलिपियों की अध्याय 3 उसका 10वां वचन कहता है, that I may know Him and the power of His resurrection and the fellowship of His sufferings, being conformed to His death. और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामत को और उसके साथ दुख में सहभागी होने के मर्म को जानता हूँ और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूँ। So this was a passion in the apostle Paul. ये प्रेरित पौलुस के अंदर की जुनून थी। Brothers and sisters, I would challenge and all of you
including myself, to have this passion to know God more. तो भाइयों बहनों, मैं आप सभी को चुनौती देता हूँ, मैं अपने आप को भी देता हूँ कि ऐसा ये जुनून जो है परमेश्वर को जानने के विषय में हमारे अंदर भी हो। That is the Christian life. यही मसीही जीवन है। Okay, that will take us on more and more in knowing God. ये हमें परमेश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा जानने की तरफ ले जाएगा। Okay, now one way of knowing God is this. तो एक तरीका जिसके द्वारा हम परमेश्वर को जान सकते हैं वो ऐसा है। 1 John 4:7-8. पहला यूहन्ना 4 उसका 7 और 8 वचन। Beloved, let us love one another, for love is from God, and everyone who loves is born of God and knows God. Verse 8 says, the one who does not love does not know God, for God is love. हे प्रियो, हम आपस में प्रेम रखें, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है, और जो कोई प्रेम करता है वह परमेश्वर से जन्मा है और परमेश्वर को जानता है। 8वां वचन, जो प्रेम नहीं रखता वह परमेश्वर को नहीं जानता है, क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। So brothers and sisters, we all want to know God. भाइयों बहनों, हम सभी परमेश्वर को जानना चाहते हैं। One essential part is that we must always remain in love. एक ज़रूरी बात यह है कि हमें हमेशा प्रेम में बना रहना है। Okay? Let us in our life not even have one single person whom we don't love. हमारे जीवन में ऐसा एक भी व्यक्ति ना हो जिससे हम प्रेम नहीं करते हों। Okay? From our side, there is always the right attitude, the positive attitude. और हमारी तरफ से हमेशा एक सही सकारात्मक मनोभाव होना चाहिए। From the other side, it can be negative and it can be hatred. और दूसरी तरफ से हो सकता है कि नफरत का मनोभाव या नकारात्मक मनोभाव आए हमारी From तरफ। our side, every person without exception, it should be, our heart should be for love. परंतु हमारी तरफ से हमेशा हर एक व्यक्ति के लिए, कोई भी व्यक्ति को ना छोड़ते हुए हर एक व्यक्ति के प्रति प्रेम होना चाहिए। This is one of the easiest ways of knowing God. यही एक आसान सा तरीका है परमेश्वर को जानने का, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। If we say that we love God and we are doing all sorts of great things, but not have love in our heart, there is something wrong in our life. यदि हम कहते हैं कि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं और सारे प्रकार के काम करते हैं और हमारे अंदर प्रेम नहीं है, It's not a something very, very high standard. ये बहुत बड़ा एक स्तर नहीं है। It is just the outcome of when we know God, that will be the outcome. ये जो है एक परिणाम होता है, जब हम परमेश्वर को जानते हैं तो उसके द्वारा ये परिणाम हमें मिलता है, Because God is love. क्योंकि परमेश्वर प्रेम है। Let us have that focus that God is love. There's nothing else other than love that we can pursue. तो हमारे आंखों में ये दृश्य होने दीजिए कि परमेश्वर प्रेम है और कुछ भी नहीं है, तो उस प्रेम का ही हमें अनुकरण करना है। Bible says pursue love. बाइबल कहता है कि प्रेम का अनुसरण We have करना to है। go after that. That we have to be a person who has more of that nature of God of love. तो हमें उसका पीछा करना है, हमें ऐसे व्यक्ति बनना है जिसके अंदर ये जो गुण है प्रेम करने का, वो बहुत ज़्यादा पाए जाएं। What will happen is that our life will bless some others. क्या होगा कि हमारा जो जीवन है दूसरों के लिए आशीष होगा, And people will come to Christ only because of that nature of love in us. और लोग मसीह के पास इसीलिए आएंगे क्योंकि हमारे अंदर वो प्रेम जो है उसका स्वभाव है। Okay, so brothers and sisters, the main thing is that desire to know God intimately. तो मुख्य बात भाइयों बहनों यही है कि परमेश्वर को जानने के लिए बड़ी एक इच्छा और लालसा हो आपके मन में। So can we say, what are the ways of knowing God? तो क्या हम ये कह सकते हैं कि परमेश्वर को जानने के मार्ग कौन से हैं? If we have to know a person more, what is the way to know the person more? यदि हम एक व्यक्ति को ज़्यादा जानना चाहते हैं तो उस व्यक्ति को ज़्यादा जानने का मार्ग क्या है? Yeah. If you have to know a person more, speak to them, then only you'll get to know, right? जब उनसे बातें करेंगे तब उन्हें ज़्यादा जान पाएंगे। Anybody else? Spend time. समय बिताना। So unless we spend time, will we know a person? यदि हम उनके साथ समय नहीं बिताएंगे तो क्या हम उस व्यक्ति को जान पाएंगे? So we heard about spending time. We तो- heard about talking. तो हमने समय बिताने के बारे में सुना, बात करने के बारे में सुना, Anything else is there? और कुछ बात है? Trust and obedience. भरोसा रखना और आज्ञा पालन करना। So
spending time is very, very important. समय बिताना जो है बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। Suppose we say, I want to know God, and we don't spend time with Him. मान लीजिए कि हम ऐसे कहते हैं कि हम परमेश्वर को जानना चाहते हैं परंतु उसके साथ समय नहीं बिताते हैं। Another thing is there, one other thing is there, spending time, trusting and obedience is there. When, suppose I'm having a relationship with, or rather friendship with Kiran, मान लीजिए कि मेरी एक दोस्ती है भाई किरण के साथ, and Kiran tells me some gives me some suggestions and advice and all that. और भाई किरण जो है मुझे कुछ उपदेश देते हैं, कुछ सलाह देते हैं। I think this will be good for you because he wants my best interest. ब्रदर ये आपके लिए अच्छा होगा क्योंकि वो मेरे लिए भलाई चाहते हैं इसलिए। And I say, no, I just neglect. मैं कहूँगा नहीं मैं अनदेखा कर दूंगा। And he keeps on telling. वो बोलते रहेंगे मुझे। Do you think that that relationship can keep on becoming better? तो क्या आपको ऐसा लगता है कि फिर ये रिश्ता जो है वो अच्छा होता जाएगा? So there's another thing. One is spending time. तो एक अलग बात है, एक तो है समय बिताना। Without spending time with God, we cannot know Him better. परमेश्वर के साथ ज़्यादा समय नहीं बिताएंगे तो हम परमेश्वर को नहीं जान पाएंगे और ज़्यादा। Without listening to Him, what He says to us, we cannot know Him better. जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहते हैं वो सुने बजाय हम उन्हें ज़्यादा नहीं जान पाएंगे। Without talking to Him, that is talking to Him, spend time with Him, we will not know Him better. उनसे बात नहीं करेंगे, उनके साथ समय नहीं बिताएंगे तो हम उन्हें नहीं जान पाएंगे ज़्यादा। So it's basically simple, but the thing that we neglect. परंतु ये बहुत ही सरल है, परंतु ये एक चीज़ है जिसे हम नज़रअंदाज कर देते हैं। We neglect because we don't think it is important. हम नज़रअंदाज इसलिए करते हैं क्योंकि हमें नहीं लगता कि ये महत्वपूर्ण है। If we think it is important, we will not neglect. यदि हम समझते हैं कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है तो हम उसे अनदेखा नहीं करेंगे। We are happy with our religious life. हमारा जो धार्मिक जीवन है उसी में हम खुश रहेंगे। Reading the Bible, बाइबल पढ़ना, and coming to church, सभा में आना, doing our duties. हमारे जो काम है वो करना, We are content with that. हम उससे ही संतुष्ट और तृप्त रहेंगे। But not knowing God. परमेश्वर को जाने बिना ही If somebody comes to us and asks some question, we are not knowing what to do because we do not know God. और कोई हमारे पास आता है कोई सवाल लेके तो हमें उसका उत्तर नहीं होता है क्योंकि हमें पता नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर को जानते ही नहीं We है। are not telling that He is full of loving kindness, justice and righteousness. हम नहीं कहते हैं कि वो करुणा से और प्रेम से और धर्म से भरा हुआ है, So we are not able to help people. तो हम लोगों की मदद नहीं कर पाते It's हैं। only those who know God can help people. जो लोग परमेश्वर को जानते हैं वही लोगों की मदद कर Challenge all पाते the हैं। young people, please make Philippians chapter 3 verse 10 your goal. मैं सभी युवजनों को चुनौती देता हूँ कि फिलिपियो 3:10 का जो वचन है उसे अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। 10 years from now you'll be a very different man. अब से लेके 10 साल के बाद आप बहुत ही अलग से एक पुरुष होंगे। Otherwise you'll be the same person 10 years later. नहीं तो क्या होगा, 10 साल बाद भी आप यही ऐसे ही व्यक्ति बने रहेंगे। And then it will be too, it will not be very easy. तो फिर आपके लिए आसान नहीं होगा। फिर Young people, this is the time when your heart is tender, you're fresh, you seek after God. युवजनों, अभी आपका जो हृदय है वो नरम है और ताज़ा है, तो अब आप पर परमेश्वर की खोज करें अभी से। And our Heavenly Father is so wonderful. हमारे स्वर्गीय पिता बहुत ही अद्भुत हैं। Okay, now let us know the Father, the Son and the Holy Spirit. अब हम पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा को जाने हैं। So, when we know God, by having a born again experience, is not only we knowing God, but God knows us. नया जन्म पाने के बाद हम परमेश्वर को जानते, इतना ही नहीं है, परमेश्वर हमें जानते हैं। It says in John, it says when he puts forth his own, he knows, he calls them by name or something like that. He calls them by name. वो जो यीशु मसीह कहते हैं कि वो उन्हें नाम से पुकारता है। 1 Corinthians 8:3 says, पहला कुरिन्थियों 8वां अध्याय उसके 3 वचन में कहा गया है, but if anyone loves God, he is known by him. परंतु जो कोई परमेश्वर से प्रेम रखता है तो परमेश्वर से पहचानता है। And Galatians 4:9 says, but now that you have come to know God, or rather to be known by God. और गलातियों 4वां अध्याय उसका 9वां वचन कहता है कि पर अब जो तुमने परमेश्वर को पहचान लिया है, वरन परमेश्वर ने तुमको पहचाना। Yeah. Now about the Heavenly Father, many times we can think that God is like a policeman. कई बार हम सोचते हैं कि परमेश्वर एक पुलिस वाले की तरह है।
waiting to see where we have made a mistake, ये देखने में इंतजार करता है कि हमने कहाँ पे गलती की है। but not knowing that He is a Father who loves us. हम ये नहीं जान पाते हैं कि वो हमारे पिता हैं जो हमसे प्रेम करते हैं। It says in 1 John 3:1, it says, see what great manner of love the Father has bestowed upon us. पहला यूहन्ना 3 अध्याय है, उसके पहले वचन में कहा गया है कि देखो पिता ने हमसे कैसा प्रेम किया है। And Zephaniah 3:17, we sang that song that God rejoices over us with shouts of joy. और हमने जबनिया के 3 अध्याय का जो वचन हमने गाया था कि परमेश्वर हमारे ऊपर बहुत ही आनंदित होता है और शोर मचाता है। And the Bible says the kindness of God leads us to repentance. और परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर की करुणा जो है हमें पश्चाताप की ओर चलाती है। And in Psalms it says to the kind He shows Himself as kind. और भजन संगीता में कहा गया है जो करुणामय है उसको अपने आप को करुणामय दिखाता है So वो। brothers and sisters, our God is an awesome God. तो भाइयों बहनों हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत परमेश्वर है। And when we come to know Him, we will only say that, Lord, you're so wonderful, you're so awesome. और जब हम उन्हें जान पाएंगे तो हम सिर्फ ये कहेंगे कि परमेश्वर अब बहुत ही अद्भुत हो, बहुत ही महान हो। We'll not have that feeling of a policeman or some strict teacher or something, but we'll have a feeling of a Father who loves us. और एक पुलिस वाले की तरह या तो फिर कोई शिक्षक की तरह की एक भावना हमारे अंदर नहीं होगी, हमारे अंदर एक पिता जो हमसे प्रेम करता है वो भावना But होगा। that is because we are spending time with Him. ये इसलिए है क्योंकि हम उनके साथ समय बिताते हैं And His word reveals His nature. और परमेश्वर का जो वचन है उसका जो चरित्र है वो हमें प्रकट करता है। So that is our Heavenly Father. वो हमारे स्वर्गीय पिता हैं। And He has got great plans for our life. उनके पास हमारे जीवन के लिए बहुत बड़ी योजनाएं हैं To give us a future and a hope. ताकि वो हमें भविष्य और एक आशा दे। Just like every parent has got a plan for the children, जैसे कि हर एक माता पिता का अपने बच्चों के लिए कोई योजनाएं होती हैं। our Heavenly Father is always planning for our very best. और हमारे स्वर्गीय पिता है जो हमारे लिए हमेशा जो है हमारे अच्छे भलाई की ही योजना बनाते हैं। Then knowing the Son, the Jesus, अब प्रभु यीशु पुत्र को जानना, it says that Paul says, I'm crucified with Christ, nevertheless I live, yet not I, but I live by the faith of the Son of God who loved me and gave Himself for me. और प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मैं प्रभु यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया जा चुका हूँ, अब मैं नहीं प्रभु यीशु मेरे द्वारा जीवित रहता है। So about Jesus also, what is our impression about Jesus? और प्रभु यीशु के बारे में हमारी जो मनोभाव है वो क्या है? Brothers and sisters, why we should know Jesus more? हमें प्रभु यीशु को ज़्यादा जानने की क्यों ज़रूरत है भाइयों बहनों? Because He was the exact radiance of the Heavenly Father. क्योंकि वो स्वर्गीय पिता के एकदम उनके समान ही के ज्योति थे। Not when He is in heaven. ऐसा नहीं कि जब वो स्वर्ग में थे In तभी, heaven He is the radiance definitely. वहाँ पे तो बिल्कुल सच में वो प्रकाशित थे, But He is the radiance of the Father even on earth. परंतु यहाँ पे वो पृथ्वी पर परमेश्वर की महिमा थे। How the Heavenly Father is Jesus portrayed. और जैसे प्रभु परमेश्वर है, पिता है, वैसे ही उन्होंने यहाँ पे हमें दर्शाया वो। So there is a word which says He made Himself of no reputation. और एक वचन ऐसा कहता है कि उसने अपने आप को बिना कोई सम्मान के बनाया। So if we want to become like Jesus, how Jesus made Himself of no reputation. और जैसे यदि हम परमेश्वर के प्रभु यीशु मसीह के समान बनना चाहते हैं, जैसे प्रभु यीशु ने अपने आप को बिना कोई आदर का, बिना कोई इज्जत का अपने आप को रखा। I was thinking of this. What is the meaning of Jesus made Himself of no reputation? मैं इसके बारे में सोच रहा था कि प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को कुछ भी सम्मान के योग्य नहीं रखा, उसका मतलब क्या है? Even when He was below 30, about which we do not know anything, और भले वो जब 30 वर्ष के नीचे ही थे, जिसके बारे में हम ज़्यादा जानते नहीं हैं, He was the perfect young person, perfect example in purity, in behavior, in faithfulness, in everything. और वो जो है एकदम सिद्ध उदाहरण थे शुद्धता में और विश्वास योग्यता में, अच्छे चरित्र के एक अच्छे उदाहरण थे वो। But nobody knew Him. परंतु कोई भी उन्हें नहीं जानता He था, was not famous. वो इतने मशहूर नहीं थे, He did not make Himself known. वो अपने आप को लोगों के बीच में मशहूर बनाना नहीं चाहता The था। world's best person was there living in Nazareth, but nobody knew about Jesus. दुनिया का सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति नाजरत में जी रहा था, पर प्रभु यीशु के बारे में कोई नहीं जानता Because था, He made Himself of no reputation. क्योंकि उन्होंने अपने आप को बिना कोई सम्मान जैसा बना के So रखा। brothers and sisters, these are the things that we can know when we know God. तो भाइयों बहनों, ये ऐसी चीजें हैं जो हम जान सकते हैं जब हम परमेश्वर को जानेंगे। So if you want to know Jesus, yeah, He's made of. So then, what about me?
तो फिर जब हम प्रभु यीशु को जानने की कोशिश करेंगे तो हम जानेंगे कि उसने अपने आप को बिना सम्मान रहित रखा, तो फिर मेरे बारे में क्या फिर? When I do something, do I need to blow my trumpet? जब मैं कुछ कार्यों को करता हूँ, क्या मुझे तुरही फूकने की जरूरत है, बताने की जरूरत है? Then I'll not be like Christ. तो फिर मैं मसीह के समान नहीं हूँ। So, knowing God is having a revelation of Him. परमेश्वर को जानना जो है, परमेश्वर का प्रकटीकरण पाना है। God will show various aspects of His nature, परमेश्वर के जो स्वभाव, इसकी पहलुओं को हमें दिखाएंगे, aspects of His qualities. उनकी गुणवत्ता के पहलुआं दिखाएंगे। As we read His Word, जैसे हम उसके वचनों को पढ़ेंगे, beyond what is written on the letter, उस वचन में जो लिखा है उसके भी परे God will give a glimpse of who He is. परमेश्वर हमें वो एक झलक देंगे कि परमेश्वर क्या है, उसका झलक हमें दिखाएंगे। Because that will change our life. क्योंकि वही चीज है जो हमारे जीवन को बदलेगा। It's not knowledge which will change our life. ये ज्ञान नहीं है, बुद्धि नहीं है जो हमारे जीवन को बदलेगा। It's what we see of God. ये वो है जो हम परमेश्वर में देखते हैं। As somebody says, you become like the God you serve. और जैसे कि किसी ने कहा है कि तुम जिस परमेश्वर की सेवा करते हो उसके समान तुम बन जाओगे। So, our nature portrays how much we know of God. हमारा जो स्वभाव है वो दिखाएगा कि हम परमेश्वर को कितना जानते हैं। So it's a beautiful thing, it's a wonderful thing. And so about Jesus, about His gentleness, it says about His gentleness, about His so many qualities of His. तो ये बहुत ही सुंदर और अद्भुत सी बात है। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह के बहुत सारी गुणवत्ता है, उनकी नम्रता, उनकी दीनता। Then about the Holy Spirit. और फिर पवित्र आत्मा के विषय में, He is one who always is a comforter. वो एक आश्वास देने वाला है पवित्र आत्मा। The Bible says in Acts 9:31, growing in the fear of the Lord and in the comfort of the Holy Spirit. 9:31. प्रेरितों के काम 9वां अध्याय है, उसके 31 वचन में कहा गया है कि सारे और उसकी उन्नति और पवित्र आत्मा की शांति में चलते और बढ़ते जाओ। Yeah, and in the comfort of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा की शांति में बढ़ते जाओ। Okay. So the Holy Spirit is one who is so gentle and is with us to always guide us. पवित्र आत्मा जो है बहुत ही नम्र और दीन है, वो हमारे साथ हमेशा हमारी अगुवाई करने के लिए बने रहता है। And we can grieve Him पर हम उन्हें दुखी कर सकते हैं by doing something which is not pleasing to God. ऐसा कुछ कार्य को करके जो कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला नहीं है। And when we don't listen to His voice, we are quenching Him. और जब हम उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं तब हम उसकी आवाज को बुझाते हैं। So, brothers and sisters, the main thing that God wants us is to know Him, because that is eternal life. और भाइयों बहनों, परमेश्वर चाहते हैं कि हम परमेश्वर को जाने। उसकी जरूरी बात यह है क्या कि वो ही अनंत जीवन है। So let us not be content, any of us, to live a religious life. हम में से कोई भी एक धार्मिक जीवन जीने में ही तृप्त या संतुष्ट ना रहें। After knowing Christ, we can still continue in religion. मसीह को जानने के बाद भी हम एक धर्म में ही अपना जीवन बिता सकते हैं। No, that should not be there. We should get to know Him more and more. वो नहीं होना चाहिए। हमें परमेश्वर को और ज्यादा से ज्यादा जानना चाहिए। Simple thing, talk to Him, spend time with Him, obey Him. सरल सी बात, प्रभु के साथ समय बिताइए, प्रभु से बातें कीजिए और परमेश्वर की आज्ञा का पालन May कीजिए। God help us. परमेश्वर हमारी सहायता करें।